Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Today in this video we are going to discuss standard 7 subject social science chapter number 1, that is two big states that we'll have to discuss. Now you know very well, if you are talking about the history, so right now present we have the Union India, okay, means all the states are under control of the union government, but earlier it was not like that. Suppose it's a particular area, so the king of this area is different, this one is particular state or place, so the king is different. So the same thing here also we'll have to learn about the two big states during the particular time of Harshvardhan and then Pulkesi II. So two big states now means we have to discuss about two states and they were big states, okay, two big states that we'll have to learn in this chapter. So first one we'll have to learn about Kanauj, and if we are talking about Kanauj, so at Kanauj at that time there was a rule of Harshvardhan. So we are going to start that thing. So first one, Harshvardhan, and the time period is 606 to 647 CE. And first one we'll have to learn, that is Kanauj, okay. So we can say during his region Kanauj is the capital of that. Earlier also they said, the king said their own capital, okay, if we are talking about present time. And if we are talking about Gujarat, so which one is capital of Gujarat? So you know very well that Gandhinagar is the capital of Gujarat, okay. And if we are talking about India, so what is the capital? Yes, New Delhi. Not only Delhi, but New Delhi is the capital of India. So earlier also if we are talking about the era, era matlab particular time. So during the rule of Harshvardhan, the capital was Kanauj. So see, first we'll have to learn about the background of Harshvardhan. So King Harshvardhan was born in 606 CE. So you have to remember born, okay, when he was born. So 606 CE. After the death of his father Prabhakar Vardhan, Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneswar. सो थानेश्वर जो थी वहाँ की थ्रोन, मतलब वो एरिया के जो किंग थे वो कौन थे? फर्स्ट प्रभाकर वर्धन. डोंट गेट कंफ्यूज. प्रभाकर वर्धन आई एम राइटिंग हियर प्रभाकर, ओके, वो फादर थे. उसके टू सन थे. कौन कौन से हैं? एक तो हर्षवर्धन है एंड सेकेंड वन इज राज्यवर्धन. तो राज्यवर्धन जो था वो क्या था? एल्डर था, एंड हर्षवर्धन जो था वो यंगर था. सो थ्रोन पे कौन आएगा? राज्यवर्धन. व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि अर्लियर इट वाज लाइक दैट हु द एल्डर सन ऑफ द पर्टिकुलर किंग विल कम ऑन द थ्रोन, ओके. तो एज पर दैट रूल वहाँ पे राज्यवर्धन जो है वो थ्रोन पे आता है. However, Rajyavardhan was killed by the king of god Shashank. Now that is also very important. फिलअप्स में आएगा दैट हु किल्ड राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाई ब्लैंक. सो किंग ऑफ गॉड, दैट इज, ये जो है वो प्लेस का नाम है, एंड जो शशांक है दैट इज़ द नेम ऑफ द किंग. एक गॉड प्लेस का किंग है शशांक, वो किसको मार देता है? राज्यवर्धन को मार देता है. देयर सिस्टर, मतलब हु सिस्टर? राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन. सो देयर सिस्टर, what was the name of their sister? So Rajyashri. Don't get confused, you have to remember all the names properly, okay. So their sister मतलब Rajyavardhan and Harshvardhan, both sister. What was the name? Rajyashri was imprisoned. imprisoned करना मतलब कैद कर लेना, जेल में रख देना, by king of Malwa देवगुप्त. Now see, ये राज्य से को इम्प्रिजन कौन करता है? तो मालवा का जो किंग है, व्हाट वाज द नेम? देवगुप्त. एंड हर्षवर्धन को किसने मार दिया था? तो किंग ऑफ गॉड, एंड द नेम ऑफ इज शशांक. डोंट गेट कंफ्यूज इन इट. आई विल चेंज द कलर फॉर यू, ओके, सो यू कैन गेट द प्रॉपर आइडिया. सी,
टू ब्रदर्स जो हमने बात की कि प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर, उसके टू सन कौन कौन था? एक था राज्यवर्धन एंड एक है हर्षवर्धन। ओके, ये दोनों की सिस्टर, मतलब टोटल ये जो प्रभाकर है उसके 3 चिल्ड्रन, तो ये दोनों की सिस्टर कौन है? दोनों की सिस्टर तो राज्यश्री। अभी ये जो राज्यवर्धन है उसको किसने मारा? तो गॉड, किंग ऑफ गॉड, दैट इज शशांक। और ये राज्यश्री है उसको किसने इम्प्रिजन किया, मतलब जेल में रख दिया, मतलब कैद बना दिया? तो किंग ऑफ मालवा, और वो कौन था? देवगुप्त। सो सी, इन वन पैराग्राफ यू हैव टोटल 4, 5, 6 names. Which are they? So Prabhakar Vardhan, main king of Thaneshwar, then elder brother or elder son, that is Rajyavardhan, younger son Harshvardhan, मीन्स ये प्रभाकर वर्धन की डॉटर राज्यश्री, हर्षवर्धन को मारने वाला कौन? गॉड शशांक, एंड राज्यश्री को प्रेजेंट करने वाला कौन? देवगुप्त। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, मतलब प्रॉब्लम्स, as advised by the leaders of kingdom. Which kingdom? So Thaneswar. Okay, Harshvardhan shouldered the responsibility of Thaneswar, present पंजाब एंड हरियाणा। शोल्डर करना मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो फिर क्या करता है? थ्रोन के ऊपर आ जाता है। एंड अर्लियर थानेश्वर एंड प्रेजेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सो लॉट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस आर देयर। एक तो फादर की डेथ हो गई, जो बड़ा भाई है उसको मतलब मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसकी जो सिस्टर है उसको भी इम्प्रेजन कर दी है। तो ये सारी सिचुएशन में वो जो लीडर्स थे उनके कहने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैंडल करता है। Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajyasri. So as soon as he came on the throne, first work उसको जो करना था वो क्या था कि उसकी जो इम्प्रिजन सिस्टर है, मतलब जो उसको कैद कर दिया है, बंदी बना दिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज सिस्टर? राजश्री। उसको पहले क्या करवाना है? निकालना है, फ्री करना है। ओके, सो दैट वाज हिज फर्स्ट वर्क। In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vindhya forest. Now see, during that time, it was again one circumstances was there. She escaped. Escaped मतलब भाग जाना। जो इम्प्रिजेंट उसको की थी वहाँ से वो भाग जाती है। क्लचीज मतलब उसके हाथ से, किसके? तो देवगुप्त के अंडर से वो भाग के कहाँ रन कर लेती है? तो विंध्या फॉरेस्ट में जाके वो वहाँ पे दौड़ के चली जाती है। He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit मतलब saint, Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. Again it's very important, this is the question. I think आपने लिखा है तो आपको पता ही होगा, it is there in the blank that with whose help, मतलब कौन से बुद्धिस्ट हर्मिट की मदद ली थी? तो दिवाकर मित्र। तो जो फॉरेस्ट में वहाँ से वो भाग जाती है, तो जो हर्षवर्धन है वो क्या करते हैं कि विंध्या फॉरेस्ट के जो लोग हैं उसकी हेल्प से, प्लस जो बुद्धिस्ट हर्मिस है, व्हाट वाज द नेम? दिवाकर मित्र, उनकी हेल्प से उसको सती। नाउ व्हाट इज सती? सती जो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सती, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, इफ़ कोई वुमन है, ओके, उसका हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के साथ जो जलती हुई फायर है, मतलब जो जलती हुई चीता है, उसके अंदर उसको भी खुद जंप करके मर जाना है। तो कमिटिंग मतलब करना। ओके, सती होने से वो लोग बचाते हैं। सिंस राजश्री's kingdom कनौज that is present in उत्तर प्रदेश was without any king at that time, हर्षवर्धन became its ruler। तो वो जो थी वो कहाँ पे थी? मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहती थी कनौज में, तो वहाँ पे अभी कोई नहीं बचा। तो डेफिनेटली हु केम देयर ऑन द रूल? सो हर्षवर्धन बिकेम द रूलर ऑफ कनौज। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा, जिसने उसका जो भाई था, व्हाट वाज द नेम? राज्यवर्धन। उसको क्या किया? उसको हरा दिया, मतलब उसका जो है वो बदला लिया। ओके, मालवा के किंग के साथ। As part of his
प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक, जिसने उसकी जो सिस्टर थी राजश्री उसको इन प्रिजन किया था। तो उसकी जो प्रिपरेशन थी वो क्या थे? सो द गॉड किंग दैट इज शशांक, ही फॉर्म्ड अ अलायंस विद द किंग ऑफ कामरूप दैट इज आसाम प्रेजेंट, दैट इज भास्कर वर्मन। उसको हराने के लिए, शशांक को हराने के लिए एक फॉर्म्ड एन अलियंस, मतलब एक ग्रुप, एक ट्रीटी फॉर्म करते हैं। किसके साथ? तो कामरूप, प्रेजेंटली इट इज़ कंसिडर्ड और नोन एज असम। तो उसका जो किंग था भास्कर वर्मन, उसके साथ वो लोग डील की, उसने डील की। किसको हराने के लिए? तो शशांक को हराने के लिए, राइट, जिसने उसकी सिस्टर जो थी भाग्यश्री, सॉरी राजश्री, उसको उसने क्या किया था? इम्प्रिजन किया था। With the help of a large army, he defeated the God King and won over a major part of his kingdom. Because it was difficult for him, मतलब to whom? So it was difficult for King Harshvardhan to attack on Shashank alone. So she took the help from the king of Kamrup, that is Bhaskar Varman, and now both the army was joined together, and with the help of large army, he, मतलब here he means who? So हर्षवर्धन डिफीटेड द गॉड किंग एंड वॉन द मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। अभी आपको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि सपोज ये एक्स किंगडम है एंड ये वाई किंगडम है, ये एक्स का किंग है, वो वाई के ऊपर अटैक करेगा एंड सपोज एक्स विल विन, तो ये वाई का जो एरिया है वो किसके अंडर में आ जाएगा? एक्स के। तो उसने ऑलमोस्ट ऐसे मेजर पार्ट को कैप्चर कर लिया। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मतलब फाइट, he fight or conquered Malwa and Saurashtra but was unsuccessful in defeating Pulkesi II, king of Chalukya dynasty of South India. Means both are the same period के जो king कह सकते हैं, एक है हर्षवर्धन एंड सेकेंड वन है पुलकेशी II। तो उसका जो भी कैंपेन था वो चालू रहा। पहले उसने वो कामरूप आसाम के किंग को हरा दिया, देन आफ्टर हमने देखा कि मालवा के किंग को हरा दिया, सौराष्ट्र में भी आया, पर वो किसको डिफीट करने के लिए मतलब अनसक्सेसफुल हुआ? सो पुलकेशी II, ही वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? सो चालुक्य डायनेस्टी, मतलब चालुक्य एरा जिसको हम बोल सकते हैं। चालुक्य जो भी मतलब डायनेस्टी, मतलब उन लोगों का जो स्टेट था उसके किंग था कौन? पुलकेशी II। उसको हराने में वो क्या हो जाता है? अनसक्सेसफुल, एंड ही वॉज रूल्ड ऑन साउथ इंडिया। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्ट्रियस ईयर, थानेश्वर इमर्ज्ड एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। 7 ईयर्स के बाद कंटिन्यूसली ही वॉन द बैटल्स वन बाय वन, एंड थानेश्वर जो उसके फादर की हेरिटेज थी, ओके, वो इमर्ज्ड करके उसने एक बहुत बड़ा किंगडम किया जो है नॉर्थ इंडिया में। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, पुलकेशी II है वो साउथ इंडिया का है और ये हर्षवर्धन है वो कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है। मतलब व्हेन यू ऑब्जर्व द मैप तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पे है हर्षवर्धन और यहाँ पे है पुलकेशी II, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। Now during the time of Harshvardhan, how was the religion and administration? How was the region? कैसे administration होता था? That we are going to see. So Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling intensively to different parts of his empire. So during his time, वो सुपरवाइज करता था, मतलब मोनिटाइज करता था किसको? जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था कहाँ पे? अपने स्टेट में। कैसे? तो ट्रैवलिंग करके, तो अलग अलग जो एम्पायर का प्लेसेस थे, पार्ट्स, वहाँ पे वो खुद ट्रैवलिंग करके क्या करता था? ऑब्जर्व करता था दैट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गोइंग ऑन। He divided his daily routine into 3 parts. Again, these will very important and in 2 marks the question will be there. Okay, so he divided his daily routine into how many parts? So 3 parts. See, the first was the administrative purpose. एक जो 3 में से if we are talking about 3 purpose, तो first purpose that is administrative part, मतलब कैसे रूल किया जाए किंगडम को, वो पार्ट। So the first part for administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare.
सेकेंड वन इज़ दैट इज़ ऑफ पब्लिक वेलफेयर। वेलफेयर मतलब अपलिफ्टमेंट, कैसे लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करके उन लोगों को अपलिफ्ट किया जाए। एंड थर्ड वन इज़ रिलीजियस एक्टिविटी। सो विच वन इज़ थर्ड वन? सो रिलीजियस मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के साथ कनेक्टेड था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हर्षवर्धन्स डेली रूटीन divides into how many parts? 3 parts. Which were they? So the first part that is of administrative purpose or administrative work, second one that is the public welfare, and third one that is the religious activities. He was so diligent in carrying out his administrative responsibility that at time he even forget his have to take his meal. मतलब he was very careful about the administrative responsibility. Okay, and sometimes what happened when he was busy with the administrative responsibilities, so sometimes even he forget to have his meal, मतलब वो अपना खाना खाना भी भूल जाता था. Means he was very dedicated towards the administrative responsibility. Now one picture is given to you, that is the handwriting of Harshvardhan. Okay, that was the old language which was used during that era, and this is the handwriting of Harshvardhan. To help him in the administration, Harshvardhan and commander in chief of army, that is Pratihara Dwarpal. Okay, तो किस ये भी important question is there. Okay, that who helped Harshvardhan in administration? So first was that Harshvardhan had commander in chief of army. जो आर्मी थी, उन लोगों का लश्कर था, उसका क्या था? कमांडर था, दैट इज चीफ. ओके, कमांडर इन चीफ मतलब मेन चीफ ऑफिसर. देन आफ्टर प्रतिहारा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द्वारपाल. देन संधि विग्रह, दैट इज द फॉरेन मिनिस्टर. संधि करना मतलब डील करना, अलग अलग स्टेट के साथ डील करने वाला, तो वो कौन था? संधि विग्रह, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर. देन राजदूत, दैट इज़ एम्बेसडर. प्रेजेंट ऑल्सो वी हैव अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी एम्बेसडर्स होते हैं, वो जो हमारा न्यू दिल्ली कैपिटल है वहाँ के स्टे करते हैं. वॉट एवर द संधि जहाँ पे हमने ये बात की डील, वो करते हैं. देन पर राज्य मंत्री, पर मतलब अनदर, दूसरा. ओके, अलग अलग राज्य के जो मंत्री थे वो. देन चीफ जस्टिस, सो महादंड नायक. महा मतलब मेन, दंड नायक, दंड मतलब जो भी कोई फॉल्ट करे, इनजस्टिस करे उसको. नायक मतलब देने वाला, मतलब जो भी दंड करे, मतलब जो खराब काम करे या तो जो भी पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट जाके वर्क करे, तो महादंड नायक, दैट इज़ अ चीफ जस्टिस. एंड अक्सर पतालिका, दैट इज़ रजिस्ट्रार. अक्सर मतलब लेटर्स. ओके, और अक्सर पटालिका मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन का काम होता था, किसी का बर्थ, फिर डेथ या तो मैरिज, वो टाइम पे भी वो सब रजिस्ट्रेशन होता था. फिर जो लैंड होती थी वो सारा, फिर लैंड रेवेन्यू के बारे में हम लोग बात करें, सो ऑल दैट थिंग रजिस्टर्ड बाय दैट पर्सन. तो ये सारे जो थे वो उसको क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन में वी कैन से हेल्पिंग हैंड्स थे, राइट, क्योंकि वो अकेला वो नहीं कर सकता था. So they all people, they have the unit, okay, and they work together. Then imprints left by Harshvardhan. Imprints मतलब वो पीछे क्या छोड़ के गया. So Harsh built many rest houses, मतलब जहाँ पे रेस्ट करने वाले हाउसेस होते हैं वो. वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मठ. मठ मतलब जहाँ पे जो साधु सेंट होते हैं वो रहते हैं वो. देन विहार, स्पेशल इट इज़ कंसिडर्ड विद जैन. ओके, जो उन लोगों के नन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो आराम करने की, रुकने की जो जगह होती है विहार. एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोहिबिट करना मतलब मनाही करना, नो, प्रतिबंध करना. तो उनके टाइम पे एनिमल को पकड़ के उसकी हत्या करना, ओके, शिकार करना, हंटिंग करना, वो प्रोहिबिट था. एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. Now see, 1 year में एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मतलब धर्म से कनेक्टेड, बौद्ध धर्म से कनेक्टेड एक मीटिंग होती थी पर ईयर कंपलसरी. और हर 5 ईयर में प्रयाग में एक रिलीजियस कॉन्ग्रेशन मतलब बहुत बड़ी मीटिंग्स जिसको हम बोले वो होती थी. ओके, ये कॉन्ग्रेशन मतलब धर्म को रिलेटेड, रिलीजियस मीट जिसको हम लोग बोल सकें.
वो एवरी 5 ईयर कहाँ पे होती थी, तो प्रयाग में होती थी। मीन्स वी कैन से कि ही वॉज वेरी मच अफेक्टेड और ही वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद द रिलीजन deeds. There he would donate generously till his entire treasury was emptied and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. See, इतना बड़ा वो धार्मिक था और रिलीजन डीड्स में इन्वॉल्व था कि वो वहाँ तक डोनेट करता था, मतलब दान करता था। कहाँ तक, जबकि उसकी एंटायर मतलब पूरी और ट्रेजरी मतलब जो खजाना होता है वो जब तक एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक वो डोनेट करता था। मतलब वहाँ पे जितने भी सेंट आते थे, जितने बुद्धिस्ट आते थे, वो सबको। नॉट ओनली दैट, समटाइम्स वॉट हैपन, इवन ही गेव हिज ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए थे वो भी वो क्या कर देता था, डोनेट कर देता था। तो मीन्स वी कैन से कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट एडोन हिज कोर्ट, मतलब डेकोरेट करना, शोभा बढ़ाना। कौन था, तो आपको याद रखना है, ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट। इट विल ऑल्सो देयर इन योर एग्जाम इन अ फॉर्म ऑफ ब्लैंक। His famous work means whose famous work? So Banbhart's famous work हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। हर्ष मतलब रिलेटेड टू हर्षवर्धन एंड चरित मतलब उसका जो कैरेक्टर था वो, एंड इवन कादम्बरी, ओके, बोथ आर इवन फेमस टुडे। We come to know about many important aspects of King Harshvardhana's region from Harshcharita. Whatever the things had happened during the time of Harshvardhan's region, that also we can get the information with the help of Harshcharita. King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, Nagnand, Ratnavali and Priyadarshika. It's again very important that being a king, not only he was a brave king, we can say he was a great writer also, and he had wrote 3 plays which were there. So Nagnand, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये आपको याद रखने, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, इसमें से कोई एक दिया होगा। एंड इट इज सेइंग दैट इट वाज रिटन बाय हर्ष बाणभट्ट, सो रॉन्ग, ओके। ये नागनंद, देन रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, दिस 3 plays आर रिटन बाय whom? सो विथ who wrote this? So Harshvardhan, okay, so it is there. Then Harshvardhana's empire, if we are talking, so you can see almost ये जो blue color का part आपको दिख रहा है, okay, so that is root of Harshvardhan, क्योंकि हमने देखा कि वो नॉर्थ में था, तो ऑलमोस्ट ये जो सारा रीजन है उसने कवर्ड किया था। और ये है साउथ, जो यहाँ पे इफ वी आर टॉकिंग, सो दैट इज़ ऑफ पुलकेशी सेकेंड, वहाँ पे पुलकेशी सेकेंड था, तो वो अनसक्सेसफुल रहा, ओके। That we will see in the next video. I hope it is clear to you. Still you have any doubt, then you can write in comment box. And thank you for watching the video. Have a nice day.